Good morning, children. So, once again, we are meeting in new lecture. That is called lecture number 4 of chapter 7, following the Mahatma part 1. Now, see, children, in last 3 lectures, I told you about from the very beginning the content regarding Gandhiji. Right? We have started our work since when he was a student. We studied in Bhavnagar, I told you all the things, right, in all these lectures. Then, in lecture 2, we have studied about his struggle, that is called Champaran Satyagraha and Kheda Satyagraha. In lecture 3, we have studied about Rowlatt Act, which was the prime topic according to Gandhi. And because of Rowlatt Act, the reaction of Rowlatt Act was found in non-cooperation movement, which we have discussed earlier. Gandhiji started non-cooperation movement, then non-cooperation movement failed because of that incident of Chori Chora, all these things I told you, right? That was 1922. See, first you understand one thing. See, all the years I have written in one side. That means which event took at which part of that time, which year rather, is to be justified. Now see, in 1922, Chori Chora incident happened and Gandhiji suspended non-cooperation movement. After that, almost 5 years, see what I have written over here inside the commission, 1927, that is from 22 to 27, that is for almost 5 years. There was no major incident or national movement which is recorded in history. तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी घर पे बैठ गए थे, आया समझ में? तो उस वो 5 साल में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रुक गया, मतलब गांधी जी सस्पेंडेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. At that time, Congress party was split into 2 parts. One group supported Mahatma Gandhi, and other group opposed Mahatma Gandhi. एक ग्रुप ऐसे बोलते थे कि भाई महात्मा गांधी कांग्रेस को अपनी घर की तरह चला रहा है, दुकान की तरह. जब जी चाहे कोई आंदोलन खड़ा कर दिया, जब जी चाहे कैंसिल कर दिया, ऐसी थोड़ी होता है. पार्टी में जब काम करते हो तो आप सबको पूछना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलता. पार्टी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, सारे लोग का अभिप्राय जरूरी है. मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, this was the 4th rank leader which opposed the decision. Right? So ultimately, these people left the party. See, it was not a personal prejudice, you see. They had difference of opinion. It was not anything personal. They left the party. On the other side, as I told you, after Kheda Satyagraha, Gandhiji got an able companion, that is called Vallabhbhai Patel, जो 1947 में 45 और वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा आपको, 45, 46 और 47 में 3 साल में सबसे बड़े हीरो की तरह बाहर निकले. आज जो आज़ाद भारत का मैप जो दिख रहे हैं वो उसकी बदौलत है सब, राइट? सो इसीलिए वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट. Congress party was split up. The group which went away from Congress party, they established their own party which was called Swaraj Party. That is 1923. Swaraj Party contested elections specifically in Bengal because the head of the Swaraj Party was Chittaranjan Das. Right? Swaraj Party won, everything was going smooth. But after the death of Chittaranjan Das, that is called in 1926, there was no able leader who can manage the whole party. So once again, that party, which was split in 1922, once again got merged with each other in 1926. Got it? Same Bengal की तरह हुआ था. बंगाल का बंटवारा कब हुआ? 1905 में. अच्छा, मर्ज कब हुआ? 1920. ठीक इसी तरह कांग्रेस का
का बंटवारा हुआ 1922 में, मर्ज हुआ वापस, एक कांग्रेस वापस बन गई 1926 में। अच्छा, तो ये 5 साल तक महात्मा गांधी ने क्या किया? समाज सेवा, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, रिमूवल ऑफ सोशल वाइसेस, राइट, prohibition of alcohol, but all these things which was prevalent in Indian society at that time. Now came the year 1927. Now we are coming to our topic, that is called Simon Commission. Sir John Simon, right, Secretary of Law in British Parliament, right? Who was Sir John Simon? He was the Secretary of Law. He was not a law minister. He was Secretary of Law in British Parliament. आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी की जंग तेज होने लगी थी, राइट? तो जैसे जैसे हम आज़ादी की डिमांड करते थे, तो एक बार वापस ब्रिटिश शासन की सरकार ने हमको एक चांद दिखाया हाथ में, राइट? एक फैंटेसी बनाई हमको कि मैं चलो हम आपको आज़ादी देने को तैयार हैं, राइट? बट फर्स्ट वी विल स्टडी द पैरामीटर्स एग्जिस्टिंग इन इंडिया, that on which basis we can give independence, we can grant independence to India, and for that commission will be appointed, and that person who was Secretary of Law was appointed as a head of this commission. Okay, that is also fine, good. To help him, other 5 members were appointed. They were all English, British, right? There came opposition. Because see, if you want to study situation of India, if you want to study about India, there is necessity of having 2 or 3 Indian members. How can British study situation of India? एक सीधा साधा एग्जाम्पल आप समझ लो, आपके घर का जो माहौल है वो आपको पता है, मेरे को थोड़ा पता होगा, हाँ? तो इंडिया का जो माहौल है, इंडियन से ज्यादा बेहतर कौन जानेगा? गांधी जी इंसिस्ट है कि अगर ये बात सही है, अगर आप आज़ादी देना चाहते हो तो 2 या 3 इंडियन मेंबर्स रखो, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड सॉरी, members will be totally British. तो हमको ये मालूम पड़ गया, कांग्रेस पार्टी को मालूम पड़ गया कि एक और झांसा है, एक और हाथ में चांद दिखाने वाली बात है, बाकी कोई आज़ादी की बात ही नहीं है, राइट? कमीशन बिठा होगा, कमीशन ने कुछ किया होगा इंग्लैंड में, फिर वो सारे कमीशन के मेंबर्स इंडिया आए। जहाँ जहाँ वो कमीशन गया, एक नाटक था इंडियन सिचुएशन स्टडी करने का। उस वक्त लाहौर गए थे, आगरा गए थे, कलकत्ता गए, दिल्ली गए, अमृतसर गए, जहाँ जहाँ ये कमीशन गया उधर लोगों ने जम के विरोध किया। People of India vehemently opposed Simon Commission wherever it went. They greeted Simon Commission with black flags. They unfurled the banner showing Simon go back. See, the photograph is given there on page number 58. That means the system which British wanted to introduce, the trap which British wanted to give to India was totally failed. So ultimately, that is a part of Simon Commission. ये बच्चों लोग आपको समझ में आ गया? परफेक्ट। ये मेरा इंट्रोडक्शन था, राइट? नाउ we'll study that full paragraph. Okay, children? See. Come to page number 58. The first topic is Simon Commission. That is 1927. Okay. The British government sent Simon Commission under the chairmanship of Sir John Simon to investigate the progress of the governance scheme introduced in India by government of India. कौन सी स्कीम लागू की थी और उसमें वो कितने सफल हुए थे, आज तक मेरे को पता नहीं चला है कि ब्रिटिश ने हमारे लाभ के लिए, हमारे सुख सुविधा के लिए स्कीम लगाई थी।
वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं है, राइट? सो इट वाज जस्ट अ फैंटेसी, राइट? एंड सजेस्ट द न्यू स्टेप्स ऑफ रिफॉर्मेशन विद इन इट। अरे भैया, अगर कोई स्कीम है तो आप सजेशन दोगे ना। स्कीम ही नहीं थी तो सजेशन कहां से आएगा, तो रिफॉर्मेशन कहां से आएगा? तो ये सब एक दिखावा था, एक शो था, नाटक था कि चलो हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई अलग थी। सच्चाई बिल्कुल ऑपोजिट थी, राइट? दिस कमीशन had to decide the political future of the country, right? They will tour all over India. They will study all the situation prevailing in India, and after that they will decide, is India capable of gaining independence or not? तो क्यों ही नाटक कर रहे हो? पहले से सब सेट किया गया है। पूरे हिंदुस्तान घूमोगे, फिर बाद में ऐसा रिपोर्ट बनाओगे कि स्टिल इंडिया इज नॉट केपेबल ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस। इंडिया अपने आप अलग नहीं रह सकता। तो पहले से ये बता दो ना, क्यों ये नाटक कर रहे हो? पीपल अंडरस्टूड इट इज वन टाइप ऑफ ड्रामा। अंडरस्टूड? दिस कमीशन had to decide the political future of our country and still did not have a single representative from India. 6 मेंबर का कमीशन था। जॉन साइमन उसका चेयरमैन था, हेड था, और उसके अलावा 5 मेंबर थे, पांचों 5 ब्रिटिश। आप इंडिया की सिचुएशन स्टडी करते हो, मेंबर्स आप ब्रिटिश रखते हो, तो ये तो बात सरासर नाइंसाफी वाली हुई। कैसे आपको पता चलेगा हिंदुस्तान में कौन सा प्रॉब्लम है? मैंने अभी बोला था ना, आपका घर का प्रॉब्लम आपको पता है, मेरे को कैसे पता चलता कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया का क्या क्या प्रॉब्लम है वो इंडियंस को पता है, इंडियन लीडर्स को पता है कि उसको क्या चाहिए। ब्रिटिश को कैसे पता चलेगा? और वैसे भी वो रूलर्स बन बैठे थे। हाँ, शायद अगर न्यूट्रल एजेंसी भी अपॉइंट किया होता तो थोड़ी बात समझ में आती कि चलो ब्रिटिश भी नहीं, इंडियन भी नहीं, कोई न्यूट्रल पार्टी है। लेकिन ये तो शासक खुद एक नाटक करने के लिए आ गए कमीशन का नाम देके, तो उसकी चोरी पकड़ी गई, बिल्कुल एक्सपोज हो गए कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, है समझ में? This made the people of India furious and insulted. All the political parties decided to boycott Simon Commission. When the members of the commission reached India, they were welcomed with the black flags and slogans. Simon, go back. जहाँ ये कमीशन गया, जो भी उस वक्त के जो सिटी थे, मैंने बोला लाहौर गया था, अमृतसर गया था, दिल्ली था, राइट, कलकत्ता ये कमीशन गया था। जहाँ जहाँ ये कमीशन के लोग गए नाटक करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो वहाँ उसको हर एक जगह पे उसका वेलकम ब्लैक फ्लैग से हुआ। अच्छा, बैनर से हुआ। अच्छा, बैनर में क्या लिखा था? साइमन गो बैक। है समझ में? पक्का हो गया बिल्कुल? दैट वाज अ पार्ट ऑफ साइमन कमीशन। नाउ इट इज बारदोली सत्याग्रह 28। बारदोली इट्स अ वेरी प्रॉस्परस लैंड इन साउथ गुजरात। सूरत, बारदोली, आपने नाम तो सुना ही है। And agriculture prosperity of Bardoli is very great since ages, because काफी का पानी मिलता है और साउथ गुजरात में वैसे भी ज़्यादा बारिश होती है, so farmers were very prosperous. Now British had the eyes on these farmers. They were charging the taxes
Farmers were readily paying taxes whatsoever. That means everything was going legal. कुछ इलीगल जैसा या कुछ न मानने वाली बात नहीं थी, सब कुछ सही ढंग से चल रहा था. But still, British had agreed on Bargoni because they knew the area around Bargoni is very prosperous, very fertile. Farmers are getting 2 or 3 crops a year. So, they are very capable. Then why don't we exploit these farmers? ऐसी गंदी सोच डेवलप करके, ऐसा गंदा विचार डेवलप करके बारडोली में जो पूरे गुजरात में, साउथ गुजरात में उस वक्त का जो रेवेन्यू का रेट था, उससे ज्यादा रेट बारडोली में लगा दिया. पूरे गुजरात में जो रेट था उससे ज्यादा 22% ज्यादा रेट बारडोली के फार्मर्स को भरना पड़ेगा. ये तो सरासर नाइंसाफी हुई. वल्लभ भाई पटेल उधर पहुंचे, पूरा मामला स्टडी किया, सरकार को रिक्वेस्ट करने के कि भाई ये क्या है, एक गांव में आप एक कस्बे में आप इतना टैक्स लेते हो, दूसरे कस्बे में इतना टैक्स लेते हो. दिस इज टोटल इनजस्टिस. यू हैव टू विथड्रॉ दिस. And why should we pay extra 22% revenue? Why should we pay? On the contrary, the revenue decided by government is already paid. We are paying them. Then why should we pay 22% extra? गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं था. लेकिन गवर्नमेंट झुकने को तैयार नहीं थी. गवर्नमेंट वाज एडमेंट कि नहीं भैया, बारडोली में अगर रहना है, खेतीबाड़ी करनी है, तो आपको 22% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा. So, the confrontation started. But as you know, वल्लभ भाई पटेल was a disciple of महात्मा गांधी. उसके शिष्य बन चुके थे अब तक. तो गांधी जी की राहबरी में, गांधी जी के गाइडेंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह लॉन्च किया कि भाई एक पैसा हम टैक्स नहीं देंगे. अगर आप सरदार मूवी देखो ना, तो ये बारडोली वाला इश्यू बताते हैं, एक बहुत बढ़िया इश्यू. सरकार ने खूब अत्याचार किए, लूटपाट की, घर में घुस के लोगों को मारा, पीटा. उसका जो एनिमल्स थे, डोमेस्टिक एनिमल्स, गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां, वो सब उठा के ले गए, खेत जला दिए, उसकी बैलगाड़ी, बैल, वो सब उठा के ले गए. लेकिन लोग टूटे नहीं. People tolerated all the atrocities performed by government, but still they did not break down. नहीं देना means नहीं देना. ये सरासर नाइंसाफी है. We will not pay a single penny as an additional revenue. आप जो भी चाहे कर लो. There was a bitter clash between people of Bargoni under the leadership of Vallabh Bhai Patel and government. The battle was becoming fiercer day by day. And finally, government has to withdraw that notification. That means farmers were victorious. Right? अच्छा, ये विक्ट्री का श्रेय इसको जाता है वल्लभ भाई पटेल को. और वो घटना के बाद उसको निकनेम मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल. आज हम पूरा नाम आज भी नहीं बोलते हैं. आज भी हम पूरा नाम नहीं बोलते हैं वल्लभ भाई पटेल. हम क्या बोलते हैं? सरदार पटेल. और इसका जीवता जागता नमूना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू. शायद आप लोग गए भी होंगे. वो स्टैच्यू का नाम भी सरदार पटेल स्टैच्यू है. सरदार वल्लभ भाई नहीं, सरदार
वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू नहीं, सरदार पटेल स्टैच्यू। और खरे अर्थ में वो सरदार साबित हुए थे आगे जाके भी। अगर सरदार साहब नहीं होते तो शायद हम ये पूरा अखंड भारत का जो आज मैप देख रहे हैं वो शायद हम नहीं देखते होते। As I told you, just now, he played a very vital role, very important role in our freedom struggle after 1945. मोहम्मद अली जिन्ना को मनाना इतना आसान नहीं था। गांधी जी भी सरेंडर हो चुके थे, जवाहरलाल नेहरू अपने स्वार्थ के लिए बैठे थे। Because of the guts of Sardar Patel, because of the efforts of Sardar Patel, ये आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं। So, बारडोली सत्याग्रह। The British government increased the revenue of Bardoli region by 22%. When the farmers' request was not attended by the government, they decided to launch a satyagraha. अभी मैं बोला ना, जो आसपास में टैक्स था उससे ज्यादा बारडोली में 22% टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो ये क्या, टैक्स का सिस्टम तो सारी जगह पे एक ही होता है, तो बारडोली के लिए एक खास विशेष क्यों? क्योंकि बारडोली में ज्यादा एक्टिविटी था उस वक्त, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो शासन को, सरकार को थोड़ी लालच चाहिए कि चलो इधर से हमको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और वैसे भी लालची तो थे। तो ये ज्यादा लालच हुई कि हम ज्यादा उसको इधर से एक्सप्लोइट करें। वल्लभ भाई पटेल accepted the leadership of this satyagraha. Ravishankar Maharaj, Jugat Ram Dave extended their support to the satyagraha. Understood? Fierce and encouraging speeches of Vallabh Bhai Patel made the farmers fearless and they denied of paying revenue. 22% क्या, एक फूटी कौड़ी भी हम नहीं देने वाले हैं ज्यादा, आपको जो चाहे करना है कर लो। अब मैंने आपको बोला अभी, गवर्नमेंट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी हैरान परेशान करने में, लेकिन फार्मर्स झुके नहीं, टूटे नहीं, और अंत में उसकी विजय निश्चित हुई। राइट? As a result, the British government called Vallabhbhai Patel to Pune. In presence of other farmers, amount of revenue was settled justly. That means जो बढ़ावा आया था 22% का वो वापस दिया गया और रेवेन्यू सिस्टम वापस फिर से सेट कर दी। The success of Bardoli Satyagraha earned Vallabhbhai Patel as a nickname सरदार। वो सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल कौन से नाम से जाने जाते थे हमारे भारत में आज भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। ऐसा समझिए, सरदार पटेल played a significant role in negotiation during 1945 to 1947 में मैंने बोला ना, he turned to be a real hero। अगर ये नहीं होता ना तो शायद हम आज ये अखंड भारत, आजाद भारत, आजाद पर अखंड भारत का शायद हम स्वप्न नहीं देख सकते। He was the creator of whole India, अखंड भारत जिसको हम बोलते हैं, right? He was among the prominent leaders of the freedom struggle from 1918 onwards। जो अभी मैंने बोला वो सही, वो बहुत टफ था। 1945 के बाद का सिचुएशन जो था, वो अकेला ही आदमी था जो ये सिचुएशन के खिलाफ लड़ा। वरना गांधी जी तो सरेंडर हो चुके थे, बड़े दिल वाले थे। मोहम्मद अली जिन्ना इतना एडमंड हो चुका था पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम लीग इतनी पावरफुल हो गई थी। क्यों?
कि ब्रिटिश ने उसको खुला तौर दिया था, क्योंकि आज़ादी देने से पहले ब्रिटिश के मन में एक मंशा थी कि हमको तो जाना है इधर से, लेकिन जाते जाते एक ऐसा प्रॉब्लम हम खड़ा करें कि आने वाले 100 साल में भी ये प्रॉब्लम कभी कतई खत्म ना हो गए और हिंदुस्तान के लोग आपस में लड़ मरे। सरदार पटेल पूरी चाल समझ गए थे। हिस्ट्री माउंटबेटन को अच्छा बताती है, लेकिन आप पढ़ो आगे, सच्ची हिस्ट्री पढ़ो, आपको सबको पता चलेगा सच्चाई क्या थी। 90% गलत छाप के रखा है। जो विलन थे हीरो बना दिया है, हीरो थे वो विलन बना दिया है। समझ, वो एक थे सरदार पटेल जिसको ये सब कुछ मालूम पड़ चुका था कि ब्रिटिश की चाल क्या है, और वो अकेले ये 3 साल लड़े थे हमारे लिए, हमारे भारत के लिए। वरना आज ये अखंड भारत कभी नहीं होता। ऐसा कुछ। So that was a great personality called Sardar Patel. He also became the president of Indian National Congress in 1931-80. Now it was Nehru Report, right? Simon Commission को हमने oppose किया, right? Simon Commission को हमने oppose किया, तो सरकार ने हमको चैलेंज किया कि अच्छा भैया आप एक रिपोर्ट बनाओ, चलो आप एक रिपोर्ट बनाओ, हमको सबमिट करो, हम देखेंगे, सुझाव देंगे, क्योंकि हमारा कमीशन गलत है, आप सही हो तो आप रिपोर्ट बनाओ, फिर उसमें हम अमल करने की सोचेंगे। एंड वी एक्सेप्टेड दिस चैलेंज वेरी स्पोर्ट्समैनली, very spiritedly we accepted this challenge, right? Under the leadership of Motilal Nehru, a very perfect report was framed. What is meant by political independence? What is meant by social independence? What is meant by economic independence? Perfect report बनाई गई थी। तकरीबन 1-1.5 साल लगा ये रिपोर्ट बनाने में। Each and every point was included in this report and it was presented to government. गवर्नमेंट ने रिपोर्ट स्टडी करने का नाटक भी किया, 1-2 महीने स्टडी का बहाना भी बताया, और उसके बाद रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं चलेगा। हमको मालूम ही था, क्योंकि हमने उसका साइमन कमीशन रिजेक्ट किया था, उसके बदले हमारा नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट हुआ। आया समझ में? सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉज, नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, वो रिपोर्ट उस वक्त रिजेक्ट हुआ, लेकिन वो रिपोर्ट जब हमारी आजादी आई, जब हम फ्री हुए, तब जाके हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के टाइम वक्त ये रिपोर्ट में से कई सारी चीजें ली गई थी जो आज हमारे संविधान में है। कॉन्स्टिट्यूशन, there are many things which is present in our constitution which is taken from Nehru report. Understood? That means Nehru report did not work out at that time when it was presented, but it was very useful. It turned to be very useful after independence during framing of constitution. आया समझ में बच्चों लोग? पक्का हो गया? Now we are shifting to Nehru report, that is 1928. Okay? The conference, having the representative of all political parties of India, met in Delhi in February 1928, क्योंकि ब्रिटिश ने को चैलेंज किया था, क्योंकि उसका साइमन कमीशन ने रिजेक्ट किया था। A committee was formed under the chairmanship of Motilal Nehru
in order to frame our constitution. Right? ब्रिटिश ने हमको चैलेंज किया था कि चलो आप पावरफुल हो, आपको सबकी समझ है, चलो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, अपना रिपोर्ट बनाओ, हम देखेंगे, स्टडी करेंगे. The committee prepared a draft of constitution which would be acceptable to all the parties. But it came to be known as Nehru Report. Right? Now say one line. The Muslim League did not accept it. वो कहाँ से एक्सेप्ट होगी? मैं बार बार बोलता हूँ हर एक लेक्चर में, जब से मुस्लिम लीग बनी थी तब से उसने ऑपोजिशन का ही काम किया था. ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिसने जिन्ना को सीधा किया था, वरना पूरा हिंदुस्तान खा जाता. हाँ? ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिसने जिन्ना को इतना सीधा किया वो अपना पाकिस्तान भूल गया था. हिंदुस्तान की बात छोड़ो, आप कभी फ्री हो तो सरदार मूवी है, देखना कभी, आपको सब कुछ पता चलेगा. एंड स्पेसिफिकली लास्ट आवर, पिछले 1 घंटे का जो मूवी है, इट इज अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 1945. क्योंकि मुस्लिम लीग का तो ये काम ही था, बस विरोध करो. कि बेसिकली मुस्लिम लीग वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश. The Muslim League did not accept this. Thus, it was rejected by British government. गवर्नमेंट ने जवाब क्या दिया कि भाई मुस्लिम लीग को पता है अच्छा नहीं लगता, मुस्लिम लीग इसमें सहमत नहीं है, इसीलिए हम भी सहमत नहीं है. अरे सीधे सीधे ऐसे बोलो ना कि मुस्लिम लीग का आपका पिट्ठू है, आपने उसको मना करने के लिए बोला है, इसलिए मुस्लिम लीग को मना किया. मुस्लिम लीग को पानी पीने की कोई तमीज नहीं थी, ढंग से पानी पीना भी नहीं आता था, ऐसे सड़क छाप नेता थे. और वो क्या नेहरू रिपोर्ट स्टडी करेंगे? वो क्या स्टडी करेंगे? इसको पानी पीने की थी, मतलब तो नहीं था, क्या बोलते हैं, आवड़त. और वो सरदार पटेल को जज करेंगे, मोतीलाल नेहरू को जज करेंगे, महात्मा गांधी को जज करेंगे. So this was all a game, a pre-planned game of British. ब्रिटिश ने कौन सा रीजन दिया कि भाई मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया है, अपने आप ही आपकी पार्टी ने रिजेक्ट किया है, आपके इंडियंस ने रिजेक्ट किया है, तो फिर हम क्यों एक्सेप्ट करें? मुस्लिम लीग को बोला गया था कि आप रिजेक्ट करो, ऐसा कुछ. So that was Nehru report. Now resolution of complaint independence. Simon Commission was rejected by Indians. Nehru report was rejected by British. So it was clear that British do not want to evacuate India. British का हिंदुस्तान छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है, मन नहीं है, सिर्फ झांसे दे रहे हैं, सिर्फ लालच दिखा रहे हैं. And that is why we passed a resolution of complete independence. ये बहुत बुरा भी हो चुका, इतना बढ़िया नेहरू रिपोर्ट बनाया था तो भी रिजेक्ट कर दिया. वो एक्सपोज हो गए थे, उसकी चाल खुल गई थी. राइट? सो resolution of complete independence. Okay? The time limit, नेहरू रिपोर्ट के बाद हमने टाइम लिमिट दिया था सरकार को हिंदुस्तान छोड़ने का. 3 बार टाइम लिमिट खत्म हो गया, डेडलाइन खत्म हो गई. तब तक सॉरी, तो भी ब्रिटिश इधर से गए नहीं थे, इसीलिए हमने पैरेलल गवर्नमेंट बनाने का फैसला किया. दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. The time limit given to grant governance to India as per Nehru report got over. Indian National Congress convened
a session at Lahore in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. Right? In this conference, a resolution of Purna Swaraj, that is called complete independence, was passed and the tricolor flag was unfurled on the banks of river Ravi at midnight, 31st December 1929, as a mark of Purna Swaraj. That means we are totally independent. We are no longer under the clutches of British government. Members took the oath of complete independence on 26 January 1930. लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन तो हमारी आज़ादी आई नहीं, लेकिन 26 जनवरी 1930 हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बन चुका था और वो दिन को याद करने के लिए आज़ादी के बाद हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया है। समझ में? ओके। Members took the oath of complete freedom on 26 January 1930. Hence, to commemorate this day, the Indian Constitution was enforced on 26 January 1954. Commemorate means to remember. क्योंकि 1930 में तो आज़ादी आई नहीं थी, तो ये जो अमर दिन था, हमारा पहला आज़ादी का दिन था, उसको सदा काल के लिए याद रखने के लिए आज़ादी के बाद जब हमारा Constitution enforced हुआ, it was made a Constitution Day. That means it was made a Republic Day. You know, 15th August is our Independence Day, and on 26 January, India was declared Republic Nation. It is our Republic Day. So, this was the thing connected to lesson number, right? This was the thing connected to lesson number 7, right? So almost all the topics are covered. Now it is your time, children, to take your homework. Come on. I hope all of you have understood all the topics, right, children? So now get a question. Question number 1. Why did people of India oppose Simon Commission? Why did people of India oppose Simon Commission? Question number 2. Write a detailed note on Bardoli Satyagraha. So, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं. Why did people of India oppose Simon Commission? And second, write a detailed note on Bardoli Satyagraha. Right? So these are the two topics which we have concluded in our chapter. Right? So we are completing our chapter number 7. Okay, children? Now we will start part 2 because this was part 1. In next lecture, we will start part 2 of Mahatma Gandhi. Okay, children? See you in next lecture. Till then, goodbye.